Good morning, Mr. Barik. How are you? Can you see me Yes, sir. now? Fine, sir. Yes, sir. We can. Happy Yeah. Independence Day, sir. Happy Independence to you all. Yes, Can you hear me? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay, okay, I am ready. Happy Independence Manoj. Day, sir. Okay, Hey, sir. good We'll start. morning, Colonel Pandey. How are 9:30 you? we'll start. Happy Independence Day to Fine, you. sir. Begin, you can start the proceedings. Yeah, we are ready. You can, if you are ready, you Hi. can go ahead. I am ready. Long years ago, we made a tryst with destiny. Now, time has and we shall redeem our place, not wholly or in full measures, but very substantial. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, but rarely in the history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. प्रारंभिक शब्द स्वतंत्र भारत के पहले भाषण का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इससे अधिक यथार्थ आरंभ और क्या हो सकता है इस स्मरण उत्सव के लिए। Good morning, Suprabhat, Namaskar. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, Chief Test Group Commander of Sambalpur, Colonel ASNO Rao, Sir, Officer in Command, Lieutenant Colonel Himansu Pandey, Sir, invited guests, teachers, and my dear cadets, I, Cadet Darshana, extend you a warm welcome on this auspicious day. Well, it's my pleasure and foremost duty to welcome you all to our digital parade and online meet on behalf of 3 Odisha CTC NCC Burla. In fact, I'd like to congratulate all of you for celebrating 73 years of independence and wishing you all a blissful 74th Independence Day. To know where we had come from tells us where we are, and to realize the future we have dreamt of. Similar is the need of an experience of great journey of our nation's past for every upcoming generation to get inspired and to achieve the unbelievable. Glittering the glories of India, scattered by the traditions of national festivals, one of which is Independence Day. To remember the worth of the pain and the love behind these irreplaceable efforts and leverage it to keep our lives steered toward greatness of our country is the duty of every citizen. 15 अगस्त 1947 नवजीवन का प्रारंभ हुआ हमारे विशाल और महान भारत देश का, जिसका वर्णन लफ्जों से परे है। वक्त के पन्नों पे एक किस्सा ऐसा भी जहां सैकड़ों भारतीय मिलकर एक आत्मा बन गए और पूर्ण विराम लगाए कई वर्षों से चले आ रहे विदेशी अतिक्रमणों के यातनाओं को अपने लाजवाब प्रकृति से एक संघर्ष जिसमें अमीर, गरीब, युवा, वृद्ध, हर जाति, क्रम और धर्मों के लोगों ने अपने स्वार्थ रहित त्याग के आहुतियों से उस आजादी के मशाल को जलाए रखे थे। भारत की स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित जीत को याद करते हुए और उनके आंखों देखे सपनों को पूरा करने का प्रण और जज्बे को बनाए रखने के लिए हम हर साल अपने देश का स्वाधीनता दिवस सहर्ष मनाते हैं, क्योंकि आजादी कोई पड़ाव नहीं, एक प्रक्रिया है। इस महामारी के चलते हम घरों में बंद जरूर हो गए हैं, परंतु हमारे भावनाओं पे कोई बंदिशें नहीं हो सकती। उसी के उदाहरण स्वरूप 3 ओडिशा सीटीसी एनसीसी बुर्ला से आयोजित यह सम्मेलनी डिजिटल परेड के नाम से, यानी कि प से पोएम, र से रेमिनिसेंस और डी से डांस, एक कोशिश है हमेशा की तरह स्वतंत्रता दिवस को मनाने की, परंतु इस बार ऑनलाइन। The song Vande Mataram is composed in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee, was a source of inspiration to the people in the freedom struggle movement. It was the nation's cry for freedom from British oppression during the freedom movement. Utterance of these words, Vande Mataram,
Give everyone the strength to withstand lathi blows on their heads and whiplash on their open borders. Many among us, the newer generation, doesn't even realize how big it is. So, on this auspicious day, I request Cadet Devashi Patro to present this captivating song, which would definitely make all of us motivated. చూడొచ్చు. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Sagalam Sufalam Malayaj Kirtana Satya Kamalam Mataram Vande Mataram Vande Mataram सुमधुर भारती सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज कीर्तना सत्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् धन्यवाद कैडेट देवेशी पात्रो। आपकी इस गायकी ने और हमारे राष्ट्रगीत के अद्भुत सम्मोहन ने इस सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को अवश्य ही तृप्त कर दिया है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी संबलपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर और आज के हमारे मुख्य अतिथि कर्नल ASN राव जी से कि वो इस अवसर को उनके बौद्धिक और मार्गदर्शकीय शब्दों से सार्थक कर दें। Thank you, Payal. Colonel Himanshu Pandey, Lieutenant Virender Kumar Barik, PA staff and cadets of 3 Orissa CTC Burla who have joined this digital parade, and also to those who could not join us due to technical constraints. A very pleasant day to you all. On this momentous occasion of 74th Independence Day, I extend warm greetings to you all. In these trying times, owing to the
COVID pandemic, it is very heartening to note that Indians across the nations have taken to the digital route to celebrate the Independence Day. Everyone is committed to social distancing and health and well-being of fellow citizens. But at the same time, there is no let-up in the expression of patriotism and the enthusiastic fervor in celebrating this greatest achievement of our independence. Today, towards this end, I appreciate you and all your efforts in organizing this event. On this great day, let us take a moment and remember the sacrifices made by all our freedom fighters, without whose undaunting love for the independent India, we would not be independent today. Let us also remember the numerous sacrifices made by our brothers in the armed forces of India and other security agencies, and many unsung heroes across the nation who silently contributed to our flag flying very high and in the spirit of our nation in glory. On this day, let us all pledge our commitment and rededicate ourselves to the ideals enshrined in our Constitution, that is, sovereign, social, secular, democratic Republic India. Let us also resolve to keep in mind at all times and uphold our commitment to ensure justice, liberty, equality, and fraternity to all without any prejudice whatsoever. Today also happens to be the raising day of NCC Group Sambalpur. What a coincidence and an opportunity to rededicate ourselves to all the above said ideals and also to the Atmanirbhar Bharat, Fit India movement and a clean and healthy India. May we all be protected. May we all be nourished. May we work together with great energy. May our intellect be sharpened. Let there be no animosity amongst us. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhimatastu Ma Vidvishavadhai. Om Shanti Shanti Shanti. In the end, I would like to thank you all for having invited me to this event and given me an opportunity to talk to you all. Thank you. Jai Hind. हम आभारी और भाग्यशाली हैं सर, आपके इन प्रभावशाली और उन्मुक्तिकरण शब्दों के लिए। हम सभी आपके शब्दों का अनुकरण पूरी निष्ठा से करेंगे। कहते हैं वाक्य कर्मों की पदध्वनि होते हैं। अपने वाक्यों से हमारे अंदर निहित वतन के प्रति दायित्व और अतुल्य अनुराग को उसकी चरम सीमा तक ले जाने आ रहे हैं कैडेट दीपंकर नंदा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयते। तात्पर्य, माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कैडेट दीपंकर नंदा, 3 उड़ीसा सीटीसी, संबलपुर ग्रुप, उड़ीसा डायरेक्टरेट का कैडेट, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां कहने को उपस्थित हूं। ये मेरा असीम सौभाग्य है कि मुझे एनसीसी परिवार की ओर से आज भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने वचन से आप सबके अंदर वो देशभक्ति की मशाल जलाने की अथक चेष्टा करूंगा। 15 अगस्त
एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि ये दिन हम 125 करोड़ देशवासियों के आन बान शान और पहचान का दिन है। ये वही दिन है जब हमने आजादी की लड़ाई जीती थी। इसी दिन न जाने गुलामी के कितने ही वर्ष काटने के बाद हमने स्वाभिमान की सांस ली थी। मंगल पांडे से लेके सुभाष चंद्र बोस तक, अल्लूरी सीताराम राजू से लेके कोमारम भीम तक, झांसी की रानी से लेके सरोजनी नायडू तक, बिरसा मुंडा से लेके वीर सुरेंद्र साय तक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वो अनेक स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम गुमनाम हो चुका है, उन सभी को मेरा नमन है, जिन्होंने अपने लहू के आखिरी बूंद तक को आजादी के नाम बहा दिया। शायद ही आज हम आजादी पर्व मना रहे होते अगर इन देशभक्तों ने अपनी जान को हथेली पे रखते हुए दुश्मनों से लोहा ना लिया होता। भले ही आजादी कितनी महंगी क्यों ना हो, मुझे फक्र है उन सभी माटी के सपूतों पे जिन्होंने इसकी कीमत चुकाने में कोई कसर न छोड़ी। चंद्रशेखर आजाद जी कहते थे, अब भी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। शहीद भगत सिंह जी भी कहते थे, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। ये सब बातें सुन के मेरे रोम रोम कांप उठते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। ये कुछ पंक्तियां स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कविता से ली गई है। हमें अभी तक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली है। आज भी हम विकलांग एवं पिछड़े हुए मानसिकता के गुलाम हैं। जाति प्रथा, स्त्री द्वेष, लिंग भेद व महिलाओं के प्रति अपराध आज भी घटित होते हैं। आज भी एक नारी रात के अंधेरे में सार्वजनिक स्थलों में भी असुरक्षित है। गांधी जी ने तो यह साफ कह दिया था, जिस दिन इस देश की महिलाएं स्वतंत्र होकर रात में सड़कों पे चल सकेंगी, उस दिन भारत स्वतंत्रता को हासिल कर लेगा। छुआछूत व सामुदायिक दंगों से आज भी हजारों लोग मारते व मरते हैं। आज भी धर्म के नाम पे लोग बांटे जा रहे हैं और वोटें खरीदे जा रही हैं। मैं तो कहता हूं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, हम सब भारतीय हैं। कौन ऊंच कौन नीच, हम सब भारतीय हैं। एनसीसी का भी यही सिद्धांत है। आज भी हमारे देश विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीकी स्थलों में दूसरे देशों पर निर्भर करता है। क्या लगता है हमारे देश में प्रतिभा यानी टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। प्रतिभा बहुत है पर साधन नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में एक रामानुजन है, एक शकुंतला देवी है, पर साधन के अभाव से और केकड़े जैसी मानसिकता रखने वाली हमारे समाज से वे कभी उभर नहीं पाते। यही बता दीजिए कि आजकल पढ़ने के लिए कौन पढ़ता है? एक नए चीज को जानने की उत्सुकता कितने लोगों में है? जब अंक के पीछे भागने की मानसिकता से हम आजाद होंगे, जब हमारे अंदर विज्ञान को जानने व समझने की उत्सुकता का प्रवाह होगा, जब हमारे अंदर एक कर गुजरने की भावना उत्पन्न होगी, तब जाके हमारे भारत आधुनिक बनेगा, तब जाके वैज्ञानिक स्तर में देश का विकास होगा। चलिए आज हम अपने आप से एक सवाल करते हैं कि क्या हम वास्तविकता में आजादी का महत्व समझते हैं? क्या हमारे शहीद देशभक्तों ने आज के इस भारत का सपना देखा था कि यही वो आर्यवर्त है जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी? ये कहते हुए मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है, मेरी आंखें नम हो जाते हैं कि नहीं, ये अवश्य वो सोने की चिड़िया नहीं है। ये वो सुंदर भारत देश नहीं जिसकी हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने कल्पना की थी। ये वो आर्यवर्त नहीं जो एक समय में विश्व गुरु था। पर अभी सही हमें अपने नींद से उठना होगा। हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा। एक सूखी लकड़ी को तोड़ना आसान है, पर सूखी लकड़ियों का एक गुच्छा तोड़ना कठिन। वैसे ही अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम उस सुंदर भारत का निर्माण कर सकें जो एक दिन किसी का सपना था। मुझे बहुत दुख होता है जब खबर में आता है किसी मुठभेड़ में मेरे देश के जवान शहीद होते हैं। देखने के लिए तो हम सब इसे खबर की तरह पढ़ते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं।
पर सोचिए उस शहीद के पिता पे क्या बीती होगी जिसने अपना जवान बेटा गंवाया। उस माँ पे क्या बीतती होगी इसका लाडला घर वापस ना पाया। अब वो किसकी राह देखेगी? वो बहन हर साल राखी पे किसकी कलाई में राखी बांधेगी, किससे उपहार मांगने की हट करेगी? वो पत्नी क्या करेगी जिसका सुहाग उजड़ चुका है? वो अनाथ बच्चे क्या करेंगे जिनसे उनका पिता का प्रेम छिन गया हो? मेरा दिल तो तब आहत होता है जब नेता मंत्री लोग उन शहीदों के बलिदानों को चंद पैसों से तोल देते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को सांत्वना देने के बजाय पूरे मामले में राजनीति घसीटते हैं और मौके पे अपनी बढ़ाई करते हैं। इस समय मुझे ये गाना याद आ रहा है जो आप सभी ने सुना ही होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देश की सेवा में खून की हजारों बूंद बह जाए, चाहे जान मैं गवा बैठूं पर मेरे आंख से आंसू ना आए। एक शायरी है, इतनी कस्में जो खाई हैं उन्हें निभाने की भी कसम खा लो जाते जाते। इतनी कस्में जो खाई हैं उन्हें निभाने की भी कसम खा लो जाते जाते। एक कसम कर्ज चुकाने की, एक कसम फर्ज निभाने की। कुमार विश्वास की कविता से मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया कैडेट दीपंकर नंदा। आपके इस भाषण ने तो हर मन को चट्टान समीप दृढ़ इरादों से और तन को कर्मशील ऊर्जा के प्रबल प्रवाह से भर दिया है। कुछ तो फीका लग रहा है ये समा अवधि। हाँ, बिना संगीत के ताल पे थिरकते कदमों के कैसे उभर सकता है सबका जोश। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। इन संगीन स्थितियों के बावजूद एक वीडियो के जरिए चलिए देखते हैं हमारे जोश की एक झलक। सौवारी जान में, सौवारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ। गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हमसे बस 2 कदम पे देखो जीत घड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश गीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। धन्यवाद आपके इस अटूट हौसले के लिए और इस खूबसूरत से नाच के लिए।
हमारे देश की हर घाव और हर गौरव का समीकरण हुआ था जिस दिन, उसी ऐतिहासिक दिन के पुनः आगमन हेतु कुछ पवित्र देश प्रेम की पंक्तियों से पिरोही एक कविता को प्रदर्शित करने आ रहे हैं लैंस कॉर्पोरल मृत्युंजय कुमार। अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित एनसीसी के कैडेट्स सभी को शुभ प्रभात एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लैंस कॉर्पोरल मृत्युंजय कुमार आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस पावन अवसर पर मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ है। मेरी कविता हमारे देश के असली हीरो, हमारी देश की सेना को समर्पित है, जिन्हें ना तो राजस्थान की झुलसा देने वाली गर्मी हरा सकती है और ना ही 14,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर की खून को जमा देने वाली ठंड हरा सकती है, जिन्हें ना तो पैसे से प्यार है और ना ही ऐशो आराम की जिंदगी से। उन्हें प्यार, उन्हें मोहब्बत है तो सिर्फ अपने वतन, सिर्फ अपने सरजमी से है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जान हथेली पर रखकर दिन रात वो सेवा करते हैं, माँ भारती पे कभी आंच ना आए, इस प्रण से वो दुश्मनों से लड़ते हैं। ना भूख की फिक्र, ना प्राण की चिंता, ना पद से कभी ये हटते हैं, हंसते हंसते वीर सपूत देश पे अपनी प्राण निछावर करते हैं। ना दौलत की, ना शोहरत की, ना जन्नत की मांग ये करते हैं, बने तिरंगा कफन हमारा, बने तिरंगा कफन हमारा, बस आरजू इतनी सी ये रखते हैं। सच्चे वीर सपूत हैं ये, माँ भारती का लाल इन्हें कहते हैं। यही है देश के असली हीरो, यही है देश के असली हीरो। आओ सम्मान हम इनका करते हैं, सम्मान हम इनका करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Lance Corporal Mrutyunjay, for inspiring poem. India was once called as Sone ki Chidiya, which meant that we had abundant resources with us. We had land that was very productive. We had ample of minerals. We were the largest spice market to all over the world. Our uniqueness and diversity glanced the evil eyes of Englishmen on us. They conspired against us through divide and rule policy. Our freedom fighters played a prominent role in the freedom fight. The most prominent one being the father of the nation, Mahatma Gandhi. He led us through the path of non-violence, and after tons of hard work, we embraced our independence. So, to know more about the freedom struggle movement and sacrifices of our proud freedom fighters, I'd request Cadet V. Ashwita to share her thoughts. With care, coated with pride, dipped in love, fly in glory, moments of freedom in the shade of joy, proud to be an Indian. Good morning, respected sir, seniors, and my dear friends. Today, we have all gathered here to celebrate this auspicious occasion of Independence Day. I would like to wish you all a very happy 74th Independence Day. As we all know that Independence Day is a festival when we celebrate our freedom fighters such as Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, and Bhagat Singh, who have sacrificed their lives for the nation's freedom and prosperity. One individual may die for an idea, but that idea, after his death, will incarnate itself into 1,000 lives. I strongly believe in this phrase, which says, patriotism is a feeling about everything which each and every individual should have. British ruled India for about 200 years, and in this time period, India has witnessed a lot of events that made our freedom fighters worry about our future. The events such as Jallianwala Bagh massacre, the faulty land settlement systems, racial discrimination, endless slavery and injustice, and also torture that led the freedom fighters to make different freedom movements against the British rule. 200 years of British rule, their oppression and injustice came to an end on the midnight of 14th August 1947. On this night, Pandit Jawaharlal Nehru rose to make a maiden speech which quotes, "When the world sleeps, India will wake up to life and freedom." For the very first time on this day, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, raised the Indian flag on the Red Fort.
and ever since, we have all been celebrating Independence Day every year. Once B.R. Ambedkar has said, as long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to you. Yes, it's been 73 years that we have achieved our independence, and as citizens of India, we are very proud of its glorious past. India has one of the oldest and richest civilizations of the world, and today we need not only be proud of our glorious past, but should also work to make our present and future better than our past. So lastly, I would like to conclude by a famous quote written by Bhagat Singh. If yet your blood doesn't rage, then it is water that flows in your veins. For what is the flesh of youth if it is not meant to the service to motherland? Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. We are Shweta for your words. I'm sure everyone present over here would get inspired. Give me blood and I'll give you freedom. The famous quote by Netaji Subhash Chandra Bose, which had aroused the Indians to sacrifice their lives and fight to free their motherland from all foreign intrusions and returns its glory to the ultimate. Similar is the impacting power of this poem written by Gopal Prasad Vyas, which narrates the historic moment of depicting a true leader calling upon patriots as a representation of realizing these feelings. Here is a video. नमस्कार, मैं आज श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखित उन्हीं हस्ते के कविता के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये कविता स्वतंत्रता संग्राम के उस समय को जिक्र करती है जब भारतीय आजाद हिंद फौज निर्माण हुआ। ये कविता कहती है कि मातृभूमि के लिए स्नेह, प्रेम, त्याग, मोह हर किसी में दिल में तो होता है, पर मातृभूमि के लिए बलिदान देना चिंतन सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर पुरुष के दिल में हो किस मतलब का जिसके उम्र का नाम नहीं, वो खून तो हो किस मतलब का जो आज से देश से काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, वो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन दुनिया ने सही सही, उस दिन दुनिया ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर तोला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यह कहते कहते वक्ता की आंखों में लहू उतर आया, यह कहते कहते वक्ता की आंखों में लहू उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठी, दमकी उनकी रक्ती निकाय। आजाद हो पाँव ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, उसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सवा में उथल पुथल, हो गई सवा में उथल पुथल, सीने में दिल में समाते थे, सर इनकलाब के नारों में कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष ऐसे नहीं, बातों से मतलब सकता है, लोहे कागज से कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। को भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर ये साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वो आगे आए जिसमें भारत के खून बहता है, वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है।
वो आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हूँ, मैं कफ्न बढ़ाता हूँ आए जो हंस कर इसको ले। सारी जनता होकर उठी, हम आते हैं माता के चरणों में लियो, हम अपने रक्त चढ़ाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वो अपना रक्त गिराते थे। सिर्फ उसी रक्त की सहमी पे वो अपना कलम गिराते थे, आजादी के परवाने पे वो हस्ताक्षर करते जाते। उस दिन तारों ने देखा, उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी इतिहास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद, जय नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सारा जहां देख लिया, कभी भी तेरे जैसा कोई नहीं है। बस नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, मां तुझे सलाम। Thank you all the seniors to present the sacrifices and struggles of our proud freedom fighters through this beautiful video through an inspiring song. The path of India's independence was never an easy task. It was never a bed of roses. Several sacrifices of our proud and immortal freedom fighters were made for our motherland. Let us be grateful for them, being responsible for our motherland. Let us ensure that we exercise our rights and proudly participate in our democracy so that our country heads in the right direction. So, as a gesture of respect to the departed souls, I request everyone present over here to practice a silent prayer for 2 minutes. मूल्य प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हिमालय की है स्वच्छ नदियों से सुशोभित मेरी भारत नगरी, ज्ञान और उद्भावनों का भरा ये भंडार है, जिते कई संस्कृतियां और कलाएं भी। गूंजती हवाओं में मंदिर की घंटियां और दरगाह की अजान, ईसा मसीह और वाहे गुरु का नाम लेते अनेक जन। विदेशियों के झेले हैं इसने कई अत्याचार, परंतु होने ना दिए उनके काले मंसूबों को साकार। जन्मे ऐसे वीरों को इस धरती ने, साहस की कलाएं लिख दी उन्होंने अपने जन्मभूमि के गौरव में। ऐ मेरे भारतवासियों, न घटने देना इसके शान को तुम, अतीत से लेके प्रेरणा फहराना इसका झंडा सबसे ऊंचा तुम। चलो साथ मिलके भरे कमियां, मिटाएं बाधाएं, हर सुबह लाए नया यश, कि अंबर भी सराहे मेरा परिपूर्ण भारतवर्ष। इस समारोह के अंत से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट वीरेंद्र कुमार बारिक जी से कि वो हमारे सदियों पुराने संस्कारों को निभाते हुए आभार व्यक्त करने की विधि पूरी कर दें। Gratitude is appreciation for the present and encouragement for the future. This is really a proud moment for me as I am here to give the vote of thanks. The climax to a successful executive program, despite the devastating circumstances due to this pandemic, for this amazing and innovative arrangement and for this excellence. On behalf of the Odisha CTC NCC BSS Bulla, I'd like to thank our chief guest, Colonel A.S.N. Rao sir, Group Commander, NCC Sambalpur Group, our officer in commanding, Lieutenant Colonel Himanshu Pandey sir, and other guests for auspicious and emboldened presence. I'd like to thank all performers for their beautiful and contenting performance, other coordinators for their vital contributions, and finally, to all the members of Free Odisha CTC NCC family and guests for attending this program and decision that we are a part of NCC and we are always united and disciplined, no matter what threatening jolts we may encounter.
And today we are also celebrating our raising day. The NCC group headquarters at Sambalpur was raised in 15 August 1965 at our university, College of Engineering at Burla. Then it was relocated to Sambalpur on 20th October 1968 and moved to the present location of BSS Stadium on 1st June 1999, Sambalpur. Group NCC has been doing yeoman service to the youth in the Western and Northern Odisha. Thank you all. Stay safe. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for your words. Without the national anthem, a national festival is like a fire without the heat. So now I request everyone to stand in your respective places for the national anthem. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे So fortunate and incredible has become this morning with this divine celebration, which is announced by every worthy presence. Stay home, stay safe. Once again, happy Independence Day to all of you. Let the patriotism flow unrestricted in your blood forever. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat. Jai Hind. Jai Hind to you all. Jai Hind, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir.